So our next session is going to be on what shall schools impart? Learning or teaching? And for this panel to moderate, we have Neha Agarwal. Hello. She is a math specialist with a student base of 1.3 million on YouTube. She teaches math, basics to advanced level and basic level for class 11th, 12th and JEE aspirants. Please welcome Neha Agarwal. Next on the panel we have Dr. Gajendra Purohit, also known as GP Sir. He has 20 years of experience in teaching mathematics. He's an entrepreneur and also a motivational speaker with over 1 million subscribers on his YouTube channel. He is also a top educator on Unacademy for CSIR, NET and IIT JAM. Please put your hands together one more time. Next on the panel we have Nimisha Bansal, the #1 English teacher on Unacademy and YouTube. She is the author of the book English with Nimisha Bansal, which is the most popular book in banking industry. Her mission is to make English the easiest language for all. Next on the panel we have Mr. A.K. Chaudhary, A.K. Sir, founder of Tricky Maths, Education Atta. He is also a motivational speaker with 2.1 million subscribers on YouTube. Next in the panel we have Simranjeet Kaur, one of the best teachers on Unacademy since 2020 for NTA, UGC and NET topics. She is MS Study Guru, that's her channel, right? And she's a top author in UGC category and specializes in economics. Please put your hands together for Simranjeet Kaur. Over to all of you. All right, hello and good afternoon. All right, hi and good afternoon. So we're going to discuss about something which probably when we connected, we were thinking कि यार बहुत ही redundant सा topic है. In the sense, when we talk about teaching versus learning in schools. अब I think I will just start with one छोटा सा किस्सा which happened with me. So I have a 7-year-old son. So probably last year what happened was I was just boiling some water in the kitchen for something. And मुझे लगा थोड़ा हीरोगिरी करते हैं, उसको बुलाते हैं, सिखाते हैं evaporation क्या होता है and all those things practically दिखाते हैं. So मैं उसको लेकर आई, मैंने बोला बेटा देखो ये होगा, अभी पानी boil होगा and all that. And he stopped me in the middle and said, Mama, please. I know what is evaporation, I know what is precipitation, I know what is condensation, and probably he had 3 more terms from his side. In short, आज की generation is very different. They are based on that learning thing, that learning technique. So if we are trying to teach them only कि ये किताब में लिखा है and this is what we need to tell them, then probably हम थोड़ा 30-40 साल पीछे चले गए हैं. So today's generation is a product, मतलब आप कह सकते हैं कि वो पैदावार उनकी है कि जहाँ पे learning is the thing, जहाँ वो सीखना चाहते हैं, ये किताबों से beyond है. So this is one such thing, and in fact, I guess 10 साल offline में पढ़ाने के बाद when I moved into online, there were so many things which we learned जो किताबों में नहीं था, which was very different from everything. So that means learning is the major thing here. And today in the schools, as we were discussing, the only thing probably which we are focusing on is कि यार syllabus पूरा करवा देते हैं. अब चाहे उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा. For example, I talk about such a thing like let's say grade 12 में हम matrices पढ़ते हैं. So हम उनको सीधा बोलते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, ये multiplication लगाया, matrices का ये हो गया, वो हो गया, that's it. What we are trying to impart is जो किताब में लिखा है दे दिया. क्यों हम आज के जनरेशन से कनेक्ट नहीं करते? क्यों नहीं उनको बताते कि जब आप व्हाट्सएप खोलते हो उसके ऊपर लिखा होता है
this message is encrypted from end to end. Now what's that encryption? That has come from matrices. Why don't we try to, मतलब एक वो वाला अंदर जज्बा क्यों नहीं जगाते कि हाँ यार, जहाँ बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टेक्निक दिमाग में आए और वो उसको एक टॉपिक से बढ़कर समझे. So I think I will start with this and मैं सब लोगों के यहाँ पर एक बार व्यूज लेना चाहूँगी. तो सर आपके साथ स्टार्ट करते हैं. आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जनरेशन में चेंजेस आ रहे हैं. लाइक आप देख रहे हो कि एजुकेशन में भी बहुत फास्ट चेंज आ रहा है आजकल. हर बच्चा कहीं ना कहीं यूट्यूब से चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है. आप देखोगे घर के अंदर पेरेंट्स अपने मोबाइल में बिजी है, बच्चा अपने मोबाइल में बिजी है. बहुत सारी चीज़ें वो चाहता है कि वो भी ऐसा कुछ करे, पर न तो हम कहीं ना कहीं बच्चों को बोलते हैं कि कितना मोबाइल यूज़ करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए. उस फील्ड में वो करियर बना भी सकता है. तो इसमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है. एक और चीज यहाँ पे में नजर आती है मुझे कि स्कूल जो है वो खाली अपना ड्यूटी कर रहा है कि कंटेंट दे रहा है, स्टूडेंट्स वहाँ पे कंटेंट ले रहा है, पर जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो कहीं ना कहीं बच्चों में डेवलप नहीं होती है. जब बच्चा वही IIT JEE और नीट एग्जाम की तैयारी करता है, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस आती है. प्लस जो ऑनलाइन एजुकेशन ने इतना सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है कि हम खुद से अपनी चीजों को सोल्यूशन ढूंढना बंद कर दिए. इवन स्टूडेंट्स में एक छोटी सी चीज भी अगर उसको समझ नहीं होती, किसी बुक में कोई डेफिनेशन है, वो ये चाहता है कि कोई उसको समझा दे, वो खुद से नहीं करना चाहता. आज कोई भी स्टूडेंट बुक खोल के नहीं समझता, बुक खोल के पढ़ना उसको नहीं आता है. उसको कहीं ना कहीं मिल जाए कोई सॉल्यूशन तो उसको समझ ले. तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. हर जगह स्टूडेंट को मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने में स्कूल भी फेल हो रहा है. इवन हम लोग भी, पेरेंट्स भी इन चीजों में, क्योंकि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं मार्क्स मैटर करता है. कहीं भी आप देखेंगे बच्चे के कितने नंबर आए वो मैटर करता है. वो कैसे नंबर लेके आ रहा है, क्या उसकी लर्निंग है, क्या उसने सीखा और एग्जाम में क्या लिखा है. मैं ऐसे एग्जाम्पल भी मैंने देखे हैं स्कूल के अंदर कि पेरेंट्स को मार्क्स का इतना प्रेशर होता है कि टीचर जब कॉपी चेक कर रहा होता है तो इरेज करके आंसर भी सही कर देते हैं और मार्क्स दे देते हैं. ये भी एग्जाम्पल नजर आते हैं स्कूल के अंदर कि नहीं यार, पेरेंट्स को क्या मैसेज आएगा कि हम ढंग से काम नहीं कर रहे. अगर बच्चे के नंबर कम आते हैं तो हम स्कूल को ब्लेम करते हैं कि भाई तुम अच्छा नहीं पढ़ा रहे. तो हमें ये देखने की जरूरत है कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हुए नहीं और किस वजह से नहीं हुए. पेरेंट्स की भी अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो भी हमें जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है. हम अपना जितना मोबाइल हम अपना यूज करते हैं, मुझे लगता है कि आजकल माँ बाप का दूसरा बच्चा मोबाइल है, बच्चे बाद में है ना, वो सोते रहे होंगे कि हमारा ओरिजिनल बच्चा हो गया, राइट. तो ये बहुत देखने को नजर आता है. फिर लास्ट में जब बच्चे में प्रॉब्लम आती है, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं या उसको एंजाइटी हो रही, फ्रस्ट्रेशन हो रही, हम अपने बच्चों में जो इमोशंस जो देखते हैं. आज एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि हम अपने घर में ऐसे पले कि हमें कोई लाइक थोड़ा बहुत कुछ हो भी था तो हम अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लिया करते थे. आज एक बच्चे को, छोटे बच्चे को जरा सी प्रॉब्लम हो जाती है तो माँ परेशान हो जाती है, पिताजी परेशान हो जाते हैं, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है कि इसको क्या हो गया. तो हम बच्चों को मतलब इतना ज्यादा वो सिक्योर कर रखा है कि वो खुद कुछ कर नहीं पा रहा है. और स्कूल में भी यही होता है, जरा सा कोई टीचर ने कुछ बोल दिया, बच्चा घर पे आके रोने लग गया तो हम स्कूल में माथे पड़ जाते हैं कि मेरे बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर दिया. होना चाहिए कि थोड़ी बहुत प्रेशर भी जरूरी है. जब तक प्रेशर बच्चा हैंडल नहीं करेगा तब तक उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा. सो ये सब चीजें हैं जो कि आज के एजुकेशन सिस्टम में नजर आती है. और मैं एक और लास्ट में कहना चाहूंगा, रिगी और इनविजिबल ने जो ये इवेंट कराया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज एक बार क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए, क्योंकि इवेंट बहुत जरूरी था. क्रिएटर से मिले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम मिले और बहुत कुछ सीखने को मिला. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इवेंट एंड दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट पॉइंट. थैंक यू मैम. Great. I would, before we just proceed, I will totally agree with this. In fact, I have been a school teacher for many years. I've started my journey from there. अब होता क्या था, कुछ पढ़ाते हुए आप सोचते हो यार एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया. अब मैं क्या करती थी, कई बार बच्चों को 3-4 के ग्रुप्स में बना देती थी कि चलो आज हम फोकस करते हैं, ये हमारे पास है, सोचो, दिमाग फोड़ो अपना, लगाओ कि क्या करेंगे ऐसा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो उसके लिए. पीछे से सुनने को क्या मिलता था, भाई तुम्हारा सिलेबस पीछे जा रहा है, क्या कर रहे हो. So that means the schools also have to learn. It is not only about कि ये चीज़ है, ये बच्चे के दिमाग में डाली और बाहर निकाल दी, बच्चा रोबोट नहीं है. They need to understand, they need to visualize so many things, which is very very important. I think let us start taking views from other teachers also, ma'am, if you would like to know. नमस्कार सभी को. सबसे पहले और एक कोट से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि जिन पौधों को बहुत संभाल के रखा जाता है, जिन पौधों को बहुत संभाल के रखा जाता है वो कभी वृक्ष नहीं बन सकते.
तो अगर आज हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को सब कुछ रटवा दें, सब कुछ याद करवा दें कि ये आपके एग्जाम में आएगा, ये आपका सिलेबस है, ये बुक है, यहाँ से पढ़ लो, ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आप दे दो, तो आपको क्या लगता है जो एग्जाम जिंदगी उनका लेगी, क्या कभी वो उस एग्जाम का आंसर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इस समय हमारे स्कूल्स को क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि हम अपने बच्चों में रीजनिंग, लॉजिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल, ये सारी की सारी स्किल्स डेवलप करें। अगर हमने अपने बच्चों में शुरुआत से ही ये सारी स्किल्स डेवलप कर दी, तो ज़िंदगी का कोई भी इम्तिहान हो, ज़िंदगी का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो कभी फेल नहीं होंगे। एक दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी वो ये है कि बहुत बार स्कूल्स में पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, क्लासमेट्स के द्वारा बच्चे को डराया जाता है कि अगर तू इस एग्ज़ाम में फेल हो गया तो तू ज़िंदगी के हर एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा अगर तू इस एग्ज़ाम में फेल हो गया। क्यों फेल होगा वो बच्चा फेल इसलिए होता है क्योंकि वो चीज़ों को रटने की कोशिश करता है। हमारे स्कूल्स में टीचिंग इम्पार्ट की जाती है, टीचिंग में उसको मगअप करवाया जाता है, जिसकी वजह से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं फेलियर के। अगर मैं स्टार्टिंग से ही बच्चे को समझाऊं कि ये चीज़ ऐसे होती है, इसका रीज़न ये है, हम पूरे उसको लॉजिक दें, पूरे उसको कॉन्सेप्ट्स बताएं हर चीज़ की, तो एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चा कभी फेल नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं इंग्लिश से लेना चाहूँगी। बहुत बार क्या होता है बचपन में, आप में भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, मैं सभी से क्वेश्चन भी पूछूंगी, हमें वोकैबुलरी कैसे याद करवाई जाती थी? कैसे याद करवाई जाती थी हमें वोकैबुलरी? हमें वर्ड का मीनिंग समझा दिया जाता था कि भाई ये वर्ड है, इस वर्ड का मतलब ये होता है, जाओ रट लो, कि आपको इस शब्द का मतलब रटना है। तो बच्चा सुबह से शाम रटता रहता था कि इस शब्द का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। एग्जाम में जाके सब कुछ मिक्सअप करके आ जाता था और इंग्लिश में कभी नंबर नहीं आता। अगर उस बच्चे को शुरुआत से ही ये समझाया जाए कि ये जो शब्द है ये कहाँ से बना है, इस शब्द का रूट क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है मिसोजिनिस्ट, अगर उस वर्ड बच्चे को ये समझाया जाए कि ये जो मिस शब्द है, इस मिस रूट वर्ड का मतलब होता है नफरत करना। ये जो गायने शब्द है, इस गायने वर्ड का मीनिंग होता है विमेन या औरत। तो उस बच्चे को हमेशा ये वर्ड हमेशा अपनी जिंदगी भर याद रहेगा कि मिसोजिनिस्ट वर्ड का मतलब ऐसा इंसान होता है जो विमेन से नफरत करता है। उसके साथ